Thank you so much, sir, for your golden words and hopefully आप सभी लोगों के लिए एक आगे अपनी लाइफ को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस इंडक्शन मीट को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूंगा जो कि हमारे माइक्रोटेक से रिलेटेड है। आज हम सभी लोग टुडे वी ऑल हैव गैदर हियर टू celebrate this induction meet of 2013. So first I would like to welcome all the new entrants who has admitted in this session for 2013 and wish you success to all your endeavor and may this journey of Microtech will provide you success and bright future for you in future. Initially Microtech was established in the year 2000 with a mission to shoulder the noble responsibilities of young, dynamic, poor and deprived people of Western UP by making them a complete professional, by providing our best of services to make them to be ready to face the challenges and demands of the highly challenging corporate houses and industries. We also want to contribute in national growth in terms of gross enrollment ratio, that is the GER, by providing them the quality training to develop their skill in their respective fields. What we are having right now, currently in Microtech, we are serving in the complete Eastern UP around all the Varanasi, it's Jaunpur, in all the surrounding areas of there. Even we are also in the Delhi NCR, we are operation in the Gurgaon. Currently we are having more than 100 faculty members and the staff members who are serving in the Microtech. Apart of this, we also have a global partnership with the several Fortune 100 national and multinational firms. Significant presence across the spectrum of IT domains of our students. Right now we are having more than 5,500 students in Microtech. So this is an achievement for all of us. And what the 5 verticals, can you see the presentations is this? It's visible? Okay. So right now we are in higher education institutions, you know very well. Apart of this, what do we do in the higher education? We are also in the e-learning and online programs that you know very well about this. Apart of this, we are also in the software development, provides technical solutions for education like learning management system, education system, assessment and other portfolios like custom application and development. We also do consulting for the Cisco, Oracle, Red Hat and the Microsoft also. And last of this, what we do, we are also the service provider of the leading universities of the India. These are the MCRPV, Soviet, PTU, SMU and all the, including the IGNOU also we are giving the services to them. What the courses we are currently we are running here, that you can see in the information technology and computer science, we are having from UG level programs to PG level programs. We have BCA, BSc IT, MCA, MSc computer science also we are having in the portfolio. In the management program, we are having BBA, MBA and PGDM. We do have biotechnology programs, that is the Bachelor in Biotechnology or Master in Biotechnology. Mass communication and journalism also we are having there. Sorry, this one is, one sec. Yeah. Recently we have started the commerce stream also, so BCom and MCom courses are also available here. And apart of this, the government certification from the NILT, this is the Department of Information Technology, Government of India, we do offer TOEIC O-level and A-level programs. Apart of this, for the professional training, we have a collaboration with the HCL, you know it's the India's one of the most renowned IT company. From there we have training for the Red Hat, Microsoft certification, Cisco certification. These all the programs we are having, we are currently running through the HCL. I would like to
जितने भी हमारे यहाँ पे इस समय न्यू कमर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन करा है, उसके लिए मैं जरा एक बार अपने माइक्रोटेक टीम मेंबर्स से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आप स्लाइड पे देख सकते हैं। माय नेम इज़ पंकज राजहंस एंड आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस कंप्लीट ग्रुप, माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। साथ में हमारे मिस्टर नीरज राजहंस जो कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मिस्टर जय मंगल सिंह जो कि यहाँ के सीनियर रजिस्ट्रार हैं और सारे वर्क्स जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और जो सारी क्वेरीज होती हैं वो सारे यूनिवर्सिटी से रिलेशनशिप वो सारी चीज़ें मिस्टर जय मंगल सिंह देखते हैं। मिस्टर मृगेंद्र नाथ मिश्रा ये हमारे कैंपस इंचार्ज हैं संकट मोचन कैंपस के। एक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को अपनी आईटी टीम मेंबर से भी कराना चाहूँगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हमारे पास इन माइक्रोटेक वी आर हैविंग मोर देन 100 फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग चाहे वो आईटी के हों चाहे वो मैनेजमेंट के हों, सबको मिला करके 100 से ज़्यादा आज के डेट में हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं। इसमें से कुछ जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, मिस खुशबू दौलानी जो कि हमारी टीम लीडर हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमारी मलदैया कैंपस की। मिस्टर राजकुमार सिंह ये हमारे सेंटर टेक्निकल हेड हैं जो कि सारी जितनी भी आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे देखते हो वो सारी मिस्टर राजकुमार सिंह हैंडल करते हैं। मिस्टर गिरीश भट्ट ये हमारे सीनियर लेक्चरर हैं आईटी के जो कि इस समय मलदैया के हमारे कैंपस में हैं। मिस्टर पंकज कुमार ये भी हमारे आईटी के फैकल्टी हैं। इसके अलावा मिस्टर आलोक गुप्ता ये सीनियर फैकल्टी हैं, साथ में ये हमारे इग्नू के भी रिलेशंस को देखते हैं, इग्नू के भी वर्क को देखते हैं। सत्येंद्र प्रजापति, अरुण मुखर्जी, राघवेंद्र सिंह, राजेश यादव, दीज आर द लिस्ट जो कि हमारे पास हैं। वीरेंद्र कुमार जायसवाल, गौरव मौर्य, राहुल कुमार गुप्ता, ये सारे लिस्ट हैं जो कि आईटी की टीम मेंबर्स हैं और जो पिछले कई सालों से माइक्रोटेक को सर्व कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट हमारा ये इसमें आता हूँ मैनेजमेंट में। जो हमारे मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मिस्टर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जो कि हेड हैं हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ के। मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह ये भी मैनेजमेंट के हमारे एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। आर्ग्या सरकार जो कि हमारे संकट मोचन कैंपस को देखते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को वो देखते हैं। जिप्सस चौरसिया, सी इज़ वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स इन द मैनेजमेंट। बायोटेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल साइंसेज की जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, मिस्टर एएन सिंह जो राइट नाउ ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द टीम इन द बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी ये सीनियर लेक्चरर हैं, विजिटिंग लेक्चरर हैं हमारे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में। मिस्टर ब्रजेश कुमार पाठक ये भी सीनियर लेक्चरर हैं बायोटेक्नोलॉजी के। मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये भी हमारे यहाँ पे सीनियर लेक्चरर हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ये कुछ हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं माइक्रोटेक में जो कि आप जानना चाहेंगे कि बेसिकली हम लोग क्या है, क्या हमारी खासियत है वो, और कैसे हम लोगों को बाकी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अलग करती है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, जो हमारे स्पेशली हमारा जो फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड है। फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड एक हम लोग इंडिया के कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये फ्लेक्सिबल लर्निंग मोड की फैसिलिटी देते हैं। मीन्स आप चाहें तो रेगुलरली भी आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, चाहे कोई हमारे पास जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो अपनी क्लासेस को वीकेंड भी कर सकते हैं, और इवन हम लोग अपनी प्रोग्राम्स को ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है जो कि हम लोग सभी के लिए अवेलेबल है, सारे, चाहे वो वर्किंग क्लास हों, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हों, चाहे बाकी के कोई एग्जीक्यूटिव्स हों। एक हमने यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आता है टीचिंग मोड। आपको पता होगा कि मैक्सिमम सारे जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, जो भी आपके सिलेबस में हैं, सारे के सारे इंग्लिश में हैं, बट स्टिल आपका मीडियम हम लोगों ने फोकस किया है कि वो हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके आपके सामने हम लोग आपको पढ़ा सकें। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे माइक्रोटेक में आते हैं वो रूरल बेल्ट से आते हैं, जिन्हें हमें पता है कि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है जो कि हमारी ज़रूरत है यहाँ पे।
उसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। इवन हमने अपने फैकल्टी मेंबर्स को ये बोला है कि नहीं, आपको कोशिश करना है कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, उनको हिंदी से करें ताकि वो बेटर वे में उस पर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। आपको एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे इसमें से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी घबरा रहे होंगे, अभी न्यू आए हैं, उन्हें लग रहा होगा कि नहीं सारी बुक्स हमारी इंग्लिश में हैं और हम कैसे अपनी स्टडी करेंगे, आगे हमारा क्या है। देखो, एक चीज़ आप जान जाओ, इंग्लिश नेचुरली इम्पॉर्टेंट तो है, बट इतना भी ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हो और आपका मीडियम हिंदी है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है। एक चीज़ आप कभी मत भूलो कि इंग्लिश हमारा मदर टंग नहीं है, मदर टंग हमारी हिंदी ही है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ करके ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हम हिंदी पढ़ करके भी करेंगे। हम तो इंडिया में हैं, हमारा वाराणसी सिटी है, आप इसको इंडिया के बाहर जा करके देखो, आप चाइना को देखो, आप फिलीपींस को देखो, अदर कंट्रीज को देखो जहां पे कि आईटी सेक्टर इसमें बूम पे है। क्या आपको पता है कि वो किस लैंग्वेज में स्टडी करते हैं? वो वहां की लोकल लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि आप हिंदी में स्टडी नहीं कर सकते हो। आप हर एक चीज में कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, साथ में जिनकी इंग्लिश वीक है वो साथ में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और जो इंग्लिश इम्प्रूव के लिए माइक्रोटेक के पास सफिशिएंट टीम मेंबर है, हमारे पास सारे करिकुलम हैं, हमने काफ़ी फोकस भी किया हुआ है। टाइम टू टाइम हम बैचेस भी चलाते रहते हैं इंग्लिश के, जो कि आप प्लेसमेंट सेल के थ्रू डिस्कस करके उनको देख सकते हो। नेक्स्ट एक हमारा बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है ऑनलाइन एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था। इसमें से आप लोगों में से कितने लोग एलएमएस से वाकिफ हो? जरा हाथ उठाना। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो कि एलएमएस के बारे में जानते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा ये बेसिकली एलएमएस है क्या। ये एलएमएस एक्चुअली एक, आप इसको डिजिटल लाइब्रेरी भी कह सकते हो, जहां पे एक कलेक्शन है आपके जो फैकल्टी आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो उनके नोट्स अवेलेबल हैं वहां पे। इसके अलावा आपकी जो बुक्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो बुक्स के कॉपीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल। साथ में हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे आप पढ़ते यहाँ पे हैं माइक्रोटेक के स्टूडेंट, बट आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट अगर IITs में चल रहे हैं तो वहाँ पे कैसे डिलीवर होता है, उस पर हम और ज़्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमने वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी हिंदी और इंग्लिश में डाल रखे हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सको और अपने नॉलेज को अपग्रेड भी कर सको। इसके अलावा एक हमने और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने यहाँ के माइक्रोटेक के स्टूडेंटों को दिया हुआ है, जो भी रेगुलर मोड में हमारे यहाँ के स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। आपको पता ही होगा कि आप सारे के सारे डुअल सर्टिफिकेशन मोड में इनरोल्ड होते हो हमारे यहाँ पे। एक डिग्री आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू तो मिलती ही है, साथ में एक हम ऑनर्स डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी साथ में देते हैं। इसके अलावा हम आपको एक लिबर्टी देते हैं कि आप चाहो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NILT और DOEX से रिलेटेड O और A लेवल के प्रोग्राम्स भी कर सकते हो, जो कि आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा अपने प्लेसमेंट सेल के लिए। हमारी प्लेसमेंट सेल है जो पूरी डेडिकेटेड है आप सभी लोगों के सर्विस के लिए, आप सभी को प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हमेशा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहे। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि आप लोगों यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनसे कि हम लोगों के टाई अप्स हैं, जो कि टाइम टू टाइम हम अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, उनको यहाँ अपने यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए बुलाते रहते हैं। एक अभी रिसेंटली इस साल हम लोगों ने, आपको पता होगा कि इंडिया की एक टॉप मोस्ट कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि IT की कंपनी है। रिसेंटली हम लोगों ने ज्वाइन किया है, इनके साथ MOU किया है। इसमें जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे BCA में इनरोल्ड स्टूडेंट हैं या BSc IT के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, उसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करती है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें उनके साथ
और उनके साथ उनके कुछ टर्म्स होते हैं, उनके कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, वो क्वालिफाई करें और उस क्वालिफिकेशन के बाद अगर आप उनके टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं तो टीसीएस आपको अपने यहाँ पे अपॉइंट करता है। और साथ में यानी कि जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, मैं बीसी और बीएससीआईटी के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, तो आपको वो मौका देता है, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप टीसीएस में वर्क करें और साथ ही साथ आप अपनी हायर स्टडी यानी कि अगर आप एमसीए वगैरह की स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी साथ में देंगे और वो उसकी डिग्री भी टीसीएस आपको अवेलेबल कराएगी साथ में। ये हमारा इस साल का एक जो न्यूली इनिशिएटिव हम लोग का एमओयू था वो उसके बारे में हमने बताया। एक बार मैं प्लेसमेंट सेल से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर धनंजय द्विवेदी, जो कि प्लेसमेंट हेड हैं, पूरी प्लेसमेंट की टीम को देखते हैं। उनके साथ सपोर्टिंग में मिस्टर जायसवाल हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, मिस्टर गणेश शंकर चतुर्वेदी, मिस्टर इंद्रसेन पांडे, मिस कृतिका गुप्ता और अभी मिस्टर अमरीश राय आए हुए हैं जो कि हमारे संकट मोचन कैंपस को भी देखते हैं। अब मैं आपको एक अपने माइक्रोटेक की एलुमनाई टीम से एक बार मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। आपको मैंने जैसे बताया कि लास्ट 13 ईयर से माइक्रोटेक वाराणसी में वर्क कर रहा है और तकरीबन मोर देन 12,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। हम सभी को तो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट मैं एक बार आप लोगों को एक ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे एलुमनाई इस समय इंडिया और अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं। ये एग्जामिनेशन टीम है। ये फर्स्ट माइक्रोटेक एलुमनाई टीम का मिस्टर अमित गुप्ता, ये हमारे फर्स्ट बैच के पास आउट हैं जो कि इस समय इंडिया हाई कमीशन लंदन में अपॉइंटेड है और ये यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे थे अपने समय में। उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज वगैरह क्वालिफाई किया। राइट नाउ ही इज इन लंदन। मिस्टर अंकित खरे, ये भी यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं और अभी ये सीनियर मैनेजर हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। मिस्टर नीतीश राय, ये सैप इंडिया आपको पता है वर्ल्ड की जानी मानी एमएनसी है, उसमें ये एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। मिस्टर अजय दीक्षित, ये ब्रांच मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली में। नेहा कोठारी, ये भी टॉपर रह चुकी हैं माइक्रोटेक की और राइट नाउ ये सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फोसिस में। ईशा बैनर्जी, ये भी सीनियर कंसल्टेंट हैं इन्फोसिस की। अंतरा बोस, साइलेंस प्लीज। अंतरा बोस, ये मैनेजर हैं एमएनसी एक कन्वर्जेस, आपको पता होगा कि बहुत ही लीडिंग कंपनी है, वहाँ पे मैनेजर है न्यू दिल्ली में। जितेंद्र विश्वकर्मा, ये मैनेजर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। सत्यपाल मौर्य, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं एक्सचेंजिंग कंपनी, राइट नाउ ये लंदन में है। शहनवाज खान, ये आईटी इंजीनियर हैं सोनी इंडिया में। शैलेश यादव, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आईबीएम में। इसके अलावा मैं हमने कुछ इंक्लूड किया हुआ है जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी से पास आउट स्टूडेंट हैं और उनका स्टेटस किया है। खुशबू श्रीवास्तव, इन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोटेक से किया था। पहले ये जेआरएफ थी सीएसआर सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट में, और राइट नाउ ये एसआरएफ हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। शिवानी सिंह, ये भी रिसर्च बायोलॉजिस्ट हैं, एक पेनेसिया बायोटेक जो आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें रिसर्च बायोलॉजिस्ट हैं। प्रीति सिंह, ये भी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में है। पारुल सिंह, प्रणव मंडल, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनके के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। गरिमा सिंह, अनुश्री श्रीवास्तव। अब आपको मैं कुछ वो स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो कि हमारे प्रीवियस पास आउट हैं, जस्ट 2012 और 13 के सेक्शन में हुए हैं। मिस्टर हृदय यादव, इनका सिलेक्शन आईआईटी रुड़की में एमसीए के लिए हुआ है और अभी ये एमसीए आईआईटी रुड़की से कर रहे हैं। एकलव्य सिंह, ये एमसीए एनआईटी जमशेदपुर से कर रहे हैं। अविनाश पांडे, ये केएनआईटी सुल्तानपुर से अपनी आगे की स्टडी कर रहे हैं, एमसीए वहाँ से कर रहे हैं। रितिका सिंह, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी बीएचयू से कर रही हैं।
शिव गोविंद यादव, ये MCA कर रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी असम की। सुजीत तिवारी, ये MCA कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सुशील यादव MCA फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी गोवा। उदय मौर्य MCA NIT वारंगल एंड विकास गुप्ता जो MCA कर रहे हैं BHU से। ये सारे आपके सीनियर्स हैं, आपके पास आउट हैं, जो यहाँ से आपके पहले जा चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी को देख करके आप इंस्पायर जरूर हुए होंगे और आगे की स्टडी आप इनको अपनी ध्यान में रखते हुए करें कि आप में से भी कुछ लोगों यहाँ इससे भी आगे पहुँचें, ताकि जब मैं नेक्स्ट इंडक्शन मीट कर रहा हूँ तो आपके भी स्लाइड इसी तरीके से हम लोग अपने इस प्रेजेंटेशन में डाल करके आपके जो न्यू कमर्स हैं उनको हम लोग दिखा सकें। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई जो कि हमारी जो अलमनाई थे, जो हमारे पास आउट थे। इसके अलावा ये कुछ हमारे अवार्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों में हम लोगों को मिला हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम लोग अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने LMS लॉन्च किया था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो एक काफ़ी अवार्ड विनिंग था, जिसमें कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अवार्ड भी मिला था उस अपनी इनिशिएटिव के लिए। इसके अलावा हमें टाइम्स एजुकेशन अवार्ड 2-3 बार पिछले लास्ट 2-3 साल से लगातार मिल रहा है। TCS से भी अभी हमने रिसेंटली स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप अवार्ड हमें मिला। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे हायर एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड और इस टाइप के बहुत सारे अवार्ड्स हम लोगों ने, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उससे हम लोगों ने ग्रैब करा है। लास्ट एंड फाइनल, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ से 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि उस 12,000 में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने की अपनी कैरियर बनाई है? 12,000 में से आगे की ओर कैरियर बनाने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे आई थिंक 10,000। 2,000 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो कि कैरियर नहीं बना पाए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसके जो आपके स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे कुछ जो एक डिसिप्लिन होती है, जो एक अनुशासन होता है इंस्टीट्यूशन के साथ, कॉलेज के साथ, वो अगर आपने ढंग से नहीं निभाया तो जाहिर सी बात है कि आपकी शिक्षा पे इसका, आपके एजुकेशन पे इसका फ़र्क पड़ेगा। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट में आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। कॉलेज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास मोस्टली 30% मार्क्स हमारे यहाँ पे इंटरनल के होते हैं, और वो जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आप टॉपर हो तो आपको 30% मार्क्स मिल जाएगा। उसके लिए हमारे ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं इनको आपको पालन करना, इसको ओबे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज यूनिफॉर्म में प्रॉपर आए। जो यूनिफॉर्म में नहीं आता है, हमने उनको बार बार मना किया, नहीं किया, उससे कोई आप ये मत समझो कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो दिखेगा और वो आपकी मार्कशीट पे दिखेगा जो आपने अगर इस चीज़ को डिसोबे किया है। क्लास अटेंडेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मोर देन 75 to 80% आपका अटेंडेंस होना मस्ट है। डिसिप्लिन एंड बिहेवियर, क्लास में आपके डिसिप्लिन एंड बिहेवियर में होना प्रॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास टेस्ट, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट हैं, वो आपको हमेशा उस पर पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने क्लास टेस्ट को स्किप किया तो आप ये जान जाओ कि जितने आपके टेस्ट होते हैं एक एक शेड्यूल में, जैसे हमने 3 टेस्ट लिए, तो उस 3 टेस्ट को हम लोग मिला करके जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो हम आपके इंटरनल मार्क्स में ऐड करते हैं। तो उसको स्किप ना करें आप लोग। आपके जो सीनियर्स, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको, उनकी इज्जत करें आप, उनको पूरी रेस्पेक्ट दें, और अपने सीनियर्स की बातों को भी मानने के लिए पहले ये चीज़ आप जरूर ध्यान दें कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका अचीवमेंट क्या है। हमेशा उनको ही अप्रिशिएट करें जिनका कि एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और उनसे ही कुछ सीखने की कोशिश करें। ऐसे सीनियर्स के पीछे ना पड़ें जो कि आपको एग्जामिनेशन में शॉर्टकट पास होने का तरीका बता दे। तो कोशिश ये कीजिए कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको आप लोग उनको साथ में रखें और उनकी बातों को आप लोग फॉलो करें। फीस सबमिशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है कि हम लोग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और आपकी टाइमली फीस सबमिशन से ही आगे सारी चीज़ें होती हैं। इवन हम आपके फॉर्म्स को भी यूनिवर्सिटी में तभी आगे फॉरवर्ड करते हैं जब आपकी फ़ीस कम्प्लीटली डिपॉजिट होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्रूशल इशू।
ये फिलहाल ये आपकी जो हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, इससे इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्डिंग ये हमारी यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं. एंड नाउ आई वुड कॉल टू सुधा फॉर द अवार्ड्स एंड फर्दर प्रोग्राम्स.